Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So, in today's lecture, we are going to talk about the disorders of the digestive system. बाकी जितना भी चैप्टर था वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अबाउट दिस चैप्टर जो पुराने साल में आ चुके हैं या जो आपको आगे के सालों में आ सकते हैं. ठीक है, so let's start it and talk about the disorders of digestive system. So the first disorder which we are going to talk about the nutritional disorder. हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे nutritional disorder जो nutrition related होती है. So nutritional disorders में actually हम दो disorders पढ़ते हैं. The first one is called as Kwashiorkor. क्या कहते हैं? Kwashiorkor. And the second one is called as marasmus. Okay, so first two disorders which we are going to talk about which are related to the nutrition are called as Kwashiorkor and marasmus. So ये जो Kwashiorkor and marasmus ये जो दो diseases है ये काफी मिलती जुलती है because both of them are nutritional disorder. इनको हम usually protein energy malnutrition कहते हैं. क्या कहते हैं हम इनको मिलाकर? Protein energy malnutrition, जहां पर there is a malnutrition of the body due to the reasons of inadequacy of vitamins and minerals in their diet. So once again I repeat PEM. So please याद रखो PEM का full form क्या है? PEM का full form है protein energy malnutrition, जिसमें हम पढ़ेंगे about the two disorders that is Kwashiorkor and marasmus. So first let us talk about Kwashiorkor. So Kwashiorkor is usually occurring in the children between the age year of 1 to 3 years old. कौन से एज ग्रुप में आती है? It's between 1 to 3 years old. So let us see what are the common symptoms of the baby suffering from these diseases. So the first one is underweight. So the child who is suffering from Kwashiorkor would be underweight according to his age and height. Second, poor brain development. जो बच्चे का जो ब्रेन होगा जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू एज वो नहीं डेवलप होगा. जो चीजें वो करना चाहिए जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें नहीं कर पाएगा. Then comes the loss of appetite. भूख नहीं लगेगी. Anemia. So what is anemia? Anemia means decreased hemoglobin in the blood. Protruding belly आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा है. यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर की जो बेली है दैट्स प्रोड्यूसिंग बाहर आई हुई है. स्लेंडर लेग्स पतले पैर होंगे. बल्जिंग आईज, आईज थोड़ी बाहर की तरफ होगी. इडिमा, देयर वुड बी इडिमा स्पेसिफिकली ऑफ द लोअर लेग्स एंड फेस. इडिमा मींस अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेमेशन बिकॉज वहां पर वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो जो फेस होगा वो थोड़ा सूजा हुआ, पैर होंगे जो थोड़े सूजे हुए दिख सकते हैं. So now this is a typical Kwashiorkor baby. This baby looks like a typical Kwashiorkor baby where you can recognize that the protruding belly जो होती है वो काफी significant होती है. So what could be the causes of this disease? The causes are, first one is protein deficient diet. अगर बच्चों के डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं होगा then it could lead to Kwashiorkor. See, protein is very important for all the age groups. Correct? प्रोटीन से ही आपका पूरा बॉडी बना होता है, वही आपको स्ट्रेंथ देती है. ठीक है, सो अगर हम पर्टिकुलरली एज ग्रुप 1 to 3 बात करें तो वहां पर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो इट लीड्स टू Kwashiorkor. देन इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डायरिया, बिकॉज अगर बच्चों में डायरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है तो भी सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं. सो द चाइल्ड इज ऑलरेडी डेफिसिट इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच कुड लीड टू Kwashiorkor. Measles, respiratory infections, intestinal worms, ill spacing of children. So measles, respiratory infections, intestinal worms are other certain disease which can lead to lot of deficiency of proteins and vitamins and minerals in the baby leading to Kwashiorkor. उसके अलावा ill spacing of children. Ill spacing of children means because see अगर if the babies are born at a very lesser gap. Okay, so if there is a very lesser gap between the siblings, it also leads to deficiencies. Apart from that, large family, if the amount of money and the food availability is less, and if the family is large, so kahin na kahin there has to be compensation in the food and the diet. So it could also lead to Kwashiorkor. Poor maternal health, early termination of breastfeeding, over diluted cow's milk. So these are the other reasons which could also lead to Kwashiorkor.
Now let us come to the second protein energy malnutrition disease, that is marasmus. Marasmus is usually seen under the age of 1 year. So 1 year, 1 साल के बच्चे के अंदर आपको ये डिसीज देखने मिलेगी, एंड यहाँ पर there will be deficiency of proteins and total food caloric value. See, when we talk about the differentiation about Kwashiorkor and marasmus, you have to be very clear कि Kwashiorkor में जो main deficiency होती है, that's all because of the proteins. एंड मेरास्मस में यहाँ पर देयर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी प्लस जो टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो इनटेक होना चाहिए वो भी काफी कम होता है. So again, as food is very much less, so it leads to mental and physical retarded growth. So body भी अच्छे से डेवलप नहीं करेगी, brain भी अच्छे से डेवलप नहीं करेगा. Subcutaneous fat disappear. You can clearly see it in the image how the child is very skinny. उसके ribs, उसके जो bones है वो भी काफी prominent है, because उसके जो skin के नीचे का जो fat है वो disappear हो जाता है, because food calories is very less. Limbs become very thin, dry, wrinkled skin. There is an emaciation, means extreme leanness. बच्चा जो होगा वो बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा. It will lead to impaired immune system, leading to respiratory and gastrointestinal infections. See, food is very important because it gives you a lot of immunity also. जब यहाँ पर बच्चे में पूरी immune system ही खराब हो जाता है, immune system low हो जाता है, तो the body becomes very susceptible to other infections like respiratory and GIT infections. Here there is no edema. This is also very much significant differentiation between Kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor mein there is a edema which is there on the face and legs, but here there is no edema. So these were the two major diseases of protein energy malnutrition. And if we talk about the reasons for marasmus, these are the same like that of Kwashiorkor only. These are like poverty, large family size, ill spacing of children, early termination of breastfeeding, over dilution of milk. So the reasons, the causes of both the diseases are same. Okay. So this is all about the protein energy malnutrition disease. Now let us come to something related to your GIT disorders. So here we are going to talk about few diseases like indigestion, constipation, diarrhea, jaundice, vomiting. I think indigestion is something जो सबको हुआ होगा कभी ना कभी, because whenever we go to a parties or a marriages, वहाँ पर the food which is available is very good and we tend to eat more and then it leads to indigestion. So indigestion हम सबने एक्सपीरियंस किया ही है कभी ना कभी. कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा कभी कभी ओवर इनटेक हो जाता है. So indigestion comes in upper abdominal complaint. So it comes in upper abdominal complaint where usually person complains of heartburn, जलन, हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जलन हो रही है, regurgitation, you will feel as if the food is coming up again, and dyspepsia, that is upper abdominal pain. So indigestion मतलब क्या, जब आपको काफी ज्यादा जलन होती है बिकॉज आप जब ज्यादा ऑयली या मसाले खा लेते हो तो जलन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन, जिसको हम हार्टबर्न कहते हैं. रिगर्गिटेशन, आपको लगता है फूड थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली आपका स्टमक इतना फुल है कि वो ऊपर की तरफ अब जा रहा है. एंड यू ऑल्सो एक्सपीरियंस डिस्पेप्सिया, दैट इज अपर एब्डोमिनल पेन. तो अगर ये तीन चीजें आपको है तो इट्स ऑल्सो रेफर्ड एज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स. ओके, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स. सो अभी इनडाइजेशन के कॉज क्या है? कॉज हमको पता है कि कॉज क्या है. सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज है लार्ज मील. कोई चीज अच्छी दिखी नहीं कि फटाफट से खा लो, पार्टी में गए फ्री का दिखाने की फटाफट से खा लो, राइट? सो लार्ज मील, जिसकी वजह से देयर वुड बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एसिड सेक्रेशन इन हाइपर एक्सेक्रेशन इन योर एब्डोमेन. लॉस ऑफ स्फिंक्टर टोन, यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर होता है? दिस इज द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको आप कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हो. तो नॉर्मली इट शुड बी क्लोज लाइक दिस, द एसिड शुड नॉट गो अप. ओके, ये एसिड ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए. बट अगर यहाँ पर अगर जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है, उसकी जो टोन है वो अगर खराब हो जाती है तो एसिड टेंड्स टू गो अप एंड देन यू एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ हार्टबर्न. Inadequate enzyme secretion. Why inadequate enzyme secretion? Because enzymes are very very important for digestion of food. पहले हमने काफी ज्यादा उसके बारे में बात करी. Again I'm not going to repeat it. Please watch the previous videos, उसमें सब कुछ है डिटेल में.
स्पाइसी फूड, एंजाइटी, यस एंजाइटी ऑल्सो लीड्स टू इंडाइजेशन। बहुत लोगों को ये थोड़ा अनरिलेटेबल लगता है कि यार एंजाइटी से कैसे इंडाइजेशन हो सकता है, बहुत लोगों को होता है। इनफैक्ट अगर आप जब कोई भी बड़े एग्जाम्स वगैरह के लिए जाते हो तो आपको पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कुछ अजीब सा नहीं महसूस होता? ओके होता है ना? तो सेम वे एंजाइटी कैन ऑल्सो लीड्स टू इनडाइजेशन। इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड, ज्यादा बर्गर पिज्जा खाओगे तो ऑब्वियसली उसको डाइजेशन को काफी टाइम लगेगा, एंड द अदर कॉज कुड बी फूड पॉइजनिंग। तो ये सारे जो कॉजेज है, दीज आर द कॉमन कॉजेज फॉर इनडाइजेशन। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? चलो इनडाइजेशन हो गया तो आपको क्या फीलिंग हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल इतना खा लिया है तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग एन एक्सपीरियंसिंग ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, एसिडिटी, हार्टबर्न, regurgitation and dyspepsia. So these are the common symptoms which you will be facing. Now what are the preventative measures? अगर ये हो गया है तो क्या कर सकते हैं हम आगे? जो मील्स है हमारे, हम उसमें लार्ज मील्स अवॉइड कर सकते हैं। तुरंत खा के सोना अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट कैन कम अप, सो you should not lie down before, as soon as you eat. Try to walk a little bit, then avoid spicy, oily, junk food, smoking as well as alcohol. So ये सारी चीजें avoid करने से you can prevent yourself from experiencing from indigestion. Okay, so that's all about indigestion. Now let us come to the next point, that is constipation. आई थिंक ये भी हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। शायद इतना बुरा कॉन्स्टिपेशन एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है जब जिस दिन आप ज्यादा पिज्जा बर्गर मैदा वाली चीजें खा लेते हो। सो व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? इट इज डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स टू लेस देन वंस अ वीक। ओके, तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये यूजुअली थोड़ा बहुत कम लोगों को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है जहां पर आपको स्टूल्स नहीं होते हैं। It goes to the lesser than once a week, or there is a difficulty in defecation resulting in abdominal pain and rarely perforation. Okay, so if you are having a perforation, if it is leading to perforation, सूजन आ रही है, abdomen pain आ रहा है, distortion हो रहा है, तो it's also one of the side effects of constipation. So what is the reasons for constipation? Low fiber diet. As I told you, अगर आप ज्यादा फाइबर्स नहीं लोगे अपने खाने में तो फिर वो जो आपका फूड है वो प्रॉपरली मिक्सअप होके उसे उस लाइक यू नो मोटिलिटी नहीं होती है वहां पर। देन इट अफेक्टेड colonic mobility due to spinal cord injury. Yes, see these are also the condition। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस होते हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उससे भी जो कॉलोनिक मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, मतलब कोलॉन की जो मोबिलिटी होती है, बिकॉज उसकी मोबिलिटी से आपका फूड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन. Other causes are increase, so these are the common causes. So what are the cure for these diseases? आप क्योर क्या कर सकते हैं? पहले तो फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए, आपका जो खाना है उसमें फाइबर एंड फ्लूइड का इंटेक जो होता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्लस एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज से आपकी बॉडी मूव होती है, आपकी मोटिलिटी होती है, विच ऑल्सो कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन. Okay, so that's all about indigestion and constipation. Now let us come to a very important disease, that is jaundice. And I think jaundice का एक basic idea तो सब किसी को है कि jaundice में सब कुछ येलो येलो दिखता है, इतना तो I think सबको पता होता है. So jaundice has come from the French word jaune, जिसका मतलब होता है yellow. Okay, so jaundice कौन से word से आया हुआ है? jaundice एक French word jaune से आया हुआ है जिसका मतलब होता है yellow. तो इसीलिए यहाँ पर देर इज अ येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, कंजंक्टिवा एंड स्क्लेरा. सो जो आपकी स्किन होती है वो येलो हो जाती है, कंजंक्टिवा जो आईज का पार्ट है, स्क्लेरा अगेन पार्ट ऑफ द आईज. मैंने आईज का स्ट्रक्चर भी अपलोड किया हुआ है ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज गो टू द चैनल. आपको आई नो कभी कभी दिक्कत भी होती होगी वीडियो सर्च करने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज आई हैव मेड प्लेलिस्ट. सो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर्स अपलोडेड है और कौन से चैप्टर में कौन सा कंटेंट अपलोडेड है, एंड वहां से आप पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. ओके, कमिंग बैक टू द जॉन्डिस. तो जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस इज येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन which is caused by hyperbilirubinemia. Now what is this hyperbilirubinemia? What such a big word?
से सोच के ही डर लग जाता है ना, बट डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है। हाइपर मतलब ज्यादा, बिलुरे बिलुर सॉरी बिलिरुबिनिया मींस इंक्रीज्ड बिलिरुबिन इन द ब्लड। सो यहाँ पर द मेन रीजन इज जो बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म है या फिर जो नॉर्मल एक्सक्रीशन है वो काफी कम हो जाता है। सी जॉन्डिस होता क्यों है? जॉन्डिस इसलिए होता है बिकॉज जो आपके रेड ब्लड सेल्स है, ओके, उनका देयर इज एन एक्सेसिव ब्रेकडाउन। जो नॉर्मली हमको पता है कि एवरी आरबीसी डाइज इन 120 डेज, करेक्ट? सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अगर कोई रीजन से आपकी आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इट लीड्स टू द इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, एंड ये फिर लिवर हैंडल नहीं कर पाता है, जिसके वजह से दिस बिलिरुबिन गोज इनटू योर डाइजेस्टिव ट्रैक, एंड फाइनली आपका जो पूरा स्किन वगैरह सब कुछ है वो येलोइश दिखने लगता है। ओके, सो जॉन्डिस क्यों होता है? वंस अगेन आई रिपीट, जॉन्डिस डेवलप ड्यू टू एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, okay, which leads to the increased bilirubin level, and this increased bilirubin level cannot be handled by liver, या फिर वो लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, या फिर उधर जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बाइल का जो नॉर्मल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होगा टू द डिओडिनम, वो भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, इसीलिए बंदे को जिसको भी जॉन्डिस हुआ है उसको काफी ज्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दिस बिलिरुबिन लेवल इज वेरी मच डायग्नोस्टिक फॉर दिस जॉन्डिस। एंड जो येलोइशनेस होती है स्किन की, कंजंक्टिवा की, स्क्लेरा की, इसको हम कहते हैं इक्टेरस। क्या कहते हैं हम इसको? इक्टेरस। तो यहाँ पर देयर इज एन एब्नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आरबीसी का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, कैसे होता है, कौन से पार्ट्स होते हैं, लाइक आपने पढ़ा होगा ना, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है इनटू हीम एंड ग्लोबिन पार्ट। ये सब भी एक्सप्लेन किया हुआ है इन द प्रीवियस लेक्चर, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आप जाएंगे और आप फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का पार्ट देखेंगे तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि कैसे वो दोनों भी चीजें बनती है एंड कैसे वो पूरा डाइजेशन होता है उस चीज का। ओके, सो सीरम बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल्स आर बिटवीन 3 to 13 प्रोमोल, बट यहाँ पर जो बिलिरुबिन का लेवल होता है इट इंक्रीजेस टू 40 to 50। ओके, इतना ज्यादा हो जाता है, इसीलिए जो स्किन वगैरह होती है वो काफी ज्यादा येलोइश दिखती है। ओके, सो बिलिरुबिन जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन वो दो टाइप का होता है, वो आइदर वाटर सॉल्युबल होता है या फिर फैट सॉल्युबल होता है। ओके, सो फैट सॉल्युबल फॉर फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल, वंस अगेन आई रिपीट, जो बिलिरुबिन इतना ज्यादा जो बिलिरुबिन बन रहा है ना, वो दो टाइप का होता है, फैट एंड वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होता है दैट इज वेरी 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 टॉक्सिक टू ब्रेन सेल्स। ओके, सो इसीलिए सीरम लेवल जो होते हैं ऑफ द बिलिरुबिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है जॉन्डिस का। यहाँ पर सपोर्टिव केयर, प्रॉपर रेस्ट हो गया है, या फिर चेंज इन डाइट। ओके, चेंज इन डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस यहाँ पर जो बंदा है उसको येलोइशनेस ऑफ स्किन के साथ साथ जो स्टूल होंगे वो व्हाइटिश कलर के होंगे। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। ओके, जो स्टूल होंगे वो व्हाइट कलर के दिखेंगे। क्यों? बिकॉज जो बाइल का जो फ्लो होना चाहिए डिओडिनम में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका होता है, इसीलिए वो जो यूरोकोम जो पिगमेंट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से द stools are whitish in color. It may also lead to pruritus or itching on skin due to bile salts, pale face, dark urine, and whitish stool. So these are the symptoms which you have to be which you have to remember because it can be asked in your exams. Okay, so this is all about the jaundice which you should know. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट डिसीज पे, दैट इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आई थिंक ये जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है अपार्ट फ्रॉम क्वाशरकर एंड मेरास्मस, ये सारा हम सबने एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया, या जॉन्डिस भी नहीं बिकॉज जॉन्डिस सबको इतना इजीली होता नहीं है, बट स्टिल ओके, लाइक वॉमिटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, इनडाइजेशन, ये सब तो सबको कुछ कभी ना कभी होता ही रहता है। सो वॉमिटिंग इज अ कंडीशन जहां पर जो स्टमक का कंटेंट होता है, जो स्टमक का कंटेंट होता है वो मुंह से फिर से निकल जाता है। ठीक है, जो स्टमक का कंटेंट एक्चुअली जहां पर रहना चाहिए वो फिर से मुंह से निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं हम इसको? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। मतलब जो पेरिस्टाल्सिस जो नीचे की तरफ होना चाहिए वो उल्टा हो जाता है, जिसके वजह से द पर्सन एक्सपीरियंस वॉमिटिंग। ओके, एंड ये जो नॉन वाइटल वॉमिटिंग सेंटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। एंड जब भी वॉमिटिंग होती है ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम वॉमिटिंग उसके पहले यू स्टार्ट हैविंग अ नॉशिएटेड फीलिंग।
तो वो nauseated जो feeling होती है उसके बाद then you have that vomiting. Okay, so now coming to the next disease, and the last disease of the nutritional disorder, that is diarrhea. So what is diarrhea? When you pass loose watery stool 3 to 4 times a day, that is called as diarrhea. Okay, so जब stool की जो amount है, frequency I would say, जब increase हो जाती है, plus जो consistency होती है वो भी अगर loose watery हो जाए तो उसको कहते हैं हम diarrhea, which could also lead to the lack of electrolyte and dehydration. Okay, because ज्यादा water loss हो जाता है तो उससे dehydration हो जाता है. आपने सुना होगा ऐसे केसेस में आपको यूजुअली वाटर इनटेक ज्यादा करना होता है, करेक्ट, ग्लूकोज लेना होता है. सो डायरिया को यू कैन क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, अक्यूट एंड क्रॉनिक. अक्यूट वाला इज वेरी कॉमन, हमने कभी कुछ बाहर का खा लिया और थोड़ा 3-4 दिन या फिर 2-3 बार लूज मोशन हो गए एंड देन योर everything is clear. Okay, so acute diarrhea would be due to some viral or bacterial or parasitic infections. But chronic diarrhea is due to irritable bowel syndrome or other intestinal diseases. So जो chronic diarrhea होता है, it could be the cause of irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome is a very big name in fact. ये जो irritable bowel syndrome है इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है. सी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ काइंड ऑफ एन इंटेस्टिनल डिसऑर्डर. ये आपके इंटेस्टाइन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें यू हैव एन स्टमक पेन, यू हैव अ डायरिया, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. इसका जो रियल कॉजेज होता है ना, ये कोई कहीं सिग्निफिकेंट नहीं है. ओके, इसके कॉजेज सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यस देयर इज सर्टेन ट्रिगरिंग पॉइंट. ओके, कुछ ट्रिगर्स होते हैं. किसी को हाई फाइबर, हाई जो हैवी फूड्स होते हैं जैसे पास्ता हो गया, सीरियल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया. किसी को जो गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं जैसे कि बीन्स, लेंटिल्स, या फिर कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस, या फिर वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर्स. तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं या फिर आई कैन से ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसके वजह से आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाए. ओके, सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब कि आपको लाइक आपका जब भी यहाँ पर ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट होगा, ट्रिगर चीज आएगी, उसके वजह से विल बी हैविंग एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होगा, ब्लोटिंग होगी. ओके, या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर डायरिया होगी, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव गैस होगी, या फिर म्यूकस होगा. सो दीज आर लाइक फ्यू सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. अदर सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि ब्लड इन स्टूल, नॉशिया, bloating, fever, dependent on cause and severity of disorders. So apart from, if the diarrhea is very going prolonged, तो कभी कभी blood भी आ जाता है जिसको आप dysentery भी कह सकते हो. When there is a blood in stool, we call it as dysentery. Okay, it could also lead to nausea, bloating, fever, because if the cause is maybe some bacterial or viral infection, it could also have fever. So these are the common causes of diarrhea. Symptoms तो वही है, simple passing loose watery stool 3 to 4 times a day. So this is all about your nutritional disorders in detail. So this chapter finally ends over here. I have tried to cover the entire chapter because a lot of people tell me कि ma'am please cover one chapter so we can also prepare. Don't cover like the individual topics. So that's why I just thought of covering this chapter and then going to another chapter also. I don't know which chapter I'm going to start with, but soon I'll be starting with another chapter also. So but before that, I'll be coming up with a video where we'll be discussing all the important MCQs for this chapter. So if you have any doubts, you can write it in the comment box. You can mail me at neatbiology@gmail.com, and I'll meet you soon with the next video. Till then, bye everybody, take care. If you have liked the video, please like the video, subscribe it, and do comment it if you have any doubts. I'll meet you soon. Bye, take care, have fun, enjoy, but at the same time, but study and work hard for your future. Bye.